Hello everyone, welcome back. In previous videos, we have seen the different coordinate systems. We have seen the rectangular coordinate system. Also, we have seen the cylindrical coordinate system. Now, in this video, we are going to learn everything about the spherical coordinate system. So to start with the spherical coordinate system, let us revise some points about the rectangular coordinate system, or that is also called the Cartesian coordinate system, and the cylindrical coordinate system. So if I will represent any point P in space, that point can be represented in Cartesian coordinate system by three coordinates x, y, and z. The same point can be represented in the cylindrical coordinate system by three coordinates, that is rho, phi, and z. Right? This point is same, but the representation is different. In different coordinate system, we can represent the point differently with different coordinates. In xyz in Cartesian, using rho phi z in the cylindrical coordinate system. Now in spherical coordinate system, the same point P can be represented by the three coordinates r, theta, and phi. R, theta, phi. Three coordinates. Right? Now, we have seen that in cylindrical coordinate system, we are having one angle phi. ठीक है? Cartesian coordinate system में कोई भी angle नहीं है. In cylindrical coordinate system, the point is represented by the three coordinates, out of which one of the coordinate is angle, and that angle is phi. In spherical coordinate system, the point is represented by r phi, r theta, sorry, r theta phi. It will be r theta phi. Just I will erase it and will write down again. So r, theta, and phi, three coordinates. So out of these three coordinates, you will see that this theta is also the angle and phi is also the angle. That means in spherical coordinate system, we are having one integer or the real value and two angles, right? So to identify any point, whether that point is in Cartesian coordinate system, cylindrical coordinate system या spherical coordinate system, अगर कोऑर्डिनेट्स अगर दिया पॉइंट दिया हुआ है उसमें एक भी एंगल नहीं है तो यू हैव टू अज्यूम दैट दैट पॉइंट इज गिवन टू यू इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तीन कोऑर्डिनेट में से एक अगर एंगल रहता है तो यू हैव टू अज्यूम दैट द पॉइंट इज गिवन टू यू इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. और तीन कोऑर्डिनेट में से दो एंगल्स अगर है दैट एंगल कैन बी स्पेसिफाइड इन डिग्रीज और रेडियंस. लेकिन दो एंगल अगर है तो इन दैट केस यू हैव टू अज्यूम दैट योर पॉइंट पी इज गिवन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. So as I have said, the point P is represented by three coordinates r, theta, and phi. So we need to understand what is r, what is theta, and what is phi. So that will be clear from the next slide when we see it graphically. So here, as you can see from this diagram, right? I have considered the point. एक point मैंने लिया हुआ है, and that point is nothing but your P. This is your P point. Yes, this point is P. Now this point P can be represented in Cartesian coordinate system as x, y, and z coordinates, right? The same point can be represented in spherical coordinate system by three coordinates, that is r, theta, and phi. So we need to understand what is r, what is theta, and what is phi. So for that, what I will consider here, I will consider the three axes, x axis, y axis, and z axis, and assume the point P anywhere in the space. So for that, what I will do here, I will draw a vector from origin up to that point. एक origin से लेके इस point तक एक vector मैं निकालता हूँ. तो ये जो रहेगा हमारे पास, the length of or the distance from origin up to this point P, that I will represent, that is the R. उसको बोलेंगे हम R. So अगर मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरा पॉइंट किसी स्पीयर के सरफेस के ऊपर अगर अवेलेबल है और स्पीयर का सेंटर अगर आपका ओरिजिन है, तो इन दैट केस जो सेंटर से लेके सरफेस तक जो डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं हम रेडियस, राइट? सो दिस आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द स्पीयर. So that's why actually this r is nothing but the distance from origin
अप टू दिस पॉइंट P, राइट। तो ये हो जाएगा हमारे पास R, दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। देन दूसरा एंगल आता है हमारे पास थीटा, राइट। सो हियर इट इज थीटा, इस डायग्राम में रॉन्गली स्पेसिफाइड दिया हुआ है, ठीक है, एंड दिस इज फाई। सो दिस एंगल इज थीटा। तो थीटा क्या रहेगा हमारे पास, थीटा है हमारे पास एंगल मेड बाय द आर। आर कौन सा है हमारे पास, ये वाला आर है, राइट। सो दिस इज योर आर। सो एंगल मेड बाय द आर विथ द पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है इस आर वाले वेक्टर ने, उसको बोलेंगे हम थीटा, राइट। Now this theta can be measured in clockwise direction or anti-clockwise direction, ये ध्यान में रखना है। तो पॉजिटिव z डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं हम थीटा, राइट। सो थीटा का जो लिमिट रहेगा, मैंने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वैसे भी गिन सकते हैं बोला है, तो ये मैक्सिमम एंगल कितना जा सकता है, द मैक्सिमम एंगल कैन बी अप टू 180 डिग्री, राइट। सो देयरफॉर ये जो थीटा का लिमिट जो रहेगा, ये थीटा का लिमिट रहेगा हमारे पास 0 से लेके 180 डिग्री तक, यानी ये रहेगा हमारे पास 0 टू पाई तक। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसका रेंज, लेकिन फिलहाल ध्यान में रखना है कि थीटा का लिमिट जो रहेगा वो रहेगा 0 टू पाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा। तीसरा है हमारे पास फाई, राइट। नाउ फाई क्या है हमारे पास, फाई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सिमिलर टू फाई एंगल इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसके लिए क्या किया था हमने, फाई निकालने के लिए जो पॉइंट P है उसको हमने प्रोजेक्ट किया था XY प्लेन में, और XY प्लेन में प्रोजेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंट P रहेगा उसको नाम देता हूं मैं P डैश, और ओरिजिन से लेके वो P डैश तक जो अंतर रहेगा, हियर इन दिस केस उसको बोला है हमने R, या इसको बोल सकते हैं आप रो भी बोल सकते हैं। तो ये जो डायरेक्शन है हमारे पास ओरिजिन से लेके P डैश तक जो लाइन कनेक्ट करता हूं, वो लाइन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करता है, दैट एंगल इज नथिंग बट फाई। और यही था हमारे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो फाई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज सिमिलर टू फाई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दोनों में फाई का फॉर्मूला भी सेम आएगा। जब हम कन्वर्शन ऑफ पॉइंट देखेंगे उस केस में देखेंगे कि फाई का जो फॉर्मूला है सिलिंड्रिकल में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों आपका सेम आएगा। तो आई होप आपको आर, थीटा और फाई का जो मीनिंग है वो आपको समझ में आया होगा, राइट। सो देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा एंड फाई। इतने डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट्स है ये ध्यान में रखिए, आगे फिर आसान होते जाएगा, राइट। then we will proceed further. So as we are having the 3 coordinates r, theta and phi, we are having the 3 base vectors. तो यहाँ पे r डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन और phi डायरेक्शन आएगा। r, theta, phi, these are the 3 coordinates. तो 3 डायरेक्शन, r डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन, phi डायरेक्शन। The unit vector in r डायरेक्शन उसको लिखूंगा मैं ar, the unit vector in theta डायरेक्शन बोलूंगा मैं a theta, and unit vector in phi डायरेक्शन बोलूंगा मैं a phi. तो in that case we are having unit vector ar, unit vector a theta and unit vector a phi. So these are the 3 base vectors in spherical coordinate system. यहाँ पे नाम चेंज करना रह गया, here you have to consider the spherical coordinate system, right. Now ar is nothing but the unit vector along the radial direction, or you can say the r direction. A theta is the unit vector along theta direction and a phi is the unit vector along phi direction. 3 डायरेक्शन में आपके 3 यूनिट वेक्टर्स, राइट, सिंपल। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड सी व्हाट आर द डिफरेंट रेंजेस। तो मैंने बोला था कि r क्या हमारे पास रेडियस ऑफ द स्फीयर बोला था, या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अप टू द पॉइंट P। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ द स्फीयर अगर आप कंसीडर करते हो तो रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड 0 भी नहीं रह सकती। तो ये क्या रेडियस क्या रहेगा हमारे पास, इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, राइट, बट it will vary from 0 to infinity. The radius of the sphere can be from 0 to infinity. इस तरह से पढ़ना है, इसलिए जो r का लिमिट रहेगा वो r का लिमिट रहेगा 0 से लेके इंफिनिटी तक। दूसरा हमारे पास थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय द r विद द पॉजिटिव z डायरेक्शन बोला है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि पाई, थीटा का लिमिट जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास 0 टू पाई। और फाई मैंने बोला था कि इट इज सिमिलर टू द फाई इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि फाई का लिमिट जो रहता है वो 0 से लेके 2 पाई, क्योंकि फाई इज द एंगल मेड बाय
the point made by the r with the positive x axis in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर सकता है. सो दैट्स व्हाई फाई का लिमिट रहेगा 0 से लेके 2 पाई. तो ये आपको रेंज ध्यान में रखना है, सो दैट यू कैन सॉल्व व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये रेंजेस आपके काम में आएंगे. ठीक है, तो ये हो जाएगा रेंज ऑफ आर थीटा एंड फाई वैल्यूज. नाउ डिफरेंशियल लेंथ्स. अभी डिफरेंशियल लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आप दोनों में हमने देखा था. अभी यहाँ पे इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायरेक्शन है हमारे पास. ठीक है, तो क्या करना है आपका, एक आर डायरेक्शन है तो डिफरेंशियल लेंथ डी आर, थीटा डायरेक्शन में पहले डी थीटा लिखना है, फाई डायरेक्शन में डी फाई लिख लेना है. लेकिन ये डिफरेंशियल लेंथ तीनों डायरेक्शन में नहीं हुआ है, ध्यान में रखना है. क्या करना है, डी थीटा के साथ आर अटैच कर देना है और डी फाई के साथ आर साइन थीटा अटैच कर देना है. तो डी आर इज द डिफरेंशियल लेंथ इन अलोंग आर डायरेक्शन, आर डी थीटा इज द डिफरेंशियल लेंथ अलोंग द थीटा डायरेक्शन, एंड आर साइन थीटा डी फाई इज द डिफरेंशियल लेंथ अलोंग द फाई डायरेक्शन. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, इसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा. तो डी आर, आर डी थीटा एंड आर साइन थीटा डी फाई आर द 3 डिफरेंशियल लेंथ अलोंग आर डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन एंड फाई डायरेक्शन. और वही मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, डी आर इज द डिफरेंशियल लेंथ अलोंग द रेडियल डायरेक्शन और यू कैन से द आर डायरेक्शन. R d theta is nothing but the differential length along the theta direction, and R sin theta d phi is the differential length along phi direction. Don't get confused here. यहाँ पे d phi है और यहाँ पे sin theta है, ध्यान में रखना है. ठीक है, you have to observe it carefully and you have to memorize it. So these are the 3 differential length. अभी differential length अगर मिल गया तो आपको differential vector लिख सकते हैं. आपको पता है डिफरेंशियल लेंथ डी आर है, तो इसके साथ क्या करेंगे आप, यूनिट वेक्टर ए आर अटैच करोगे. तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल लेंथ वेक्टर अलोंग आर डायरेक्शन. ठीक है, देन दूसरा है हमारे पास डिफरेंशियल लेंथ आर डी थीटा है, तो इसके साथ यूनिट वेक्टर ए थीटा अटैच कर देना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल लेंथ अलोंग थीटा डायरेक्शन. और तीसरा है हमारे पास आर साइन थीटा डी फाई, ये डिफरेंशियल लेंथ अलोंग फाई डायरेक्शन है, इसको यूनिट वेक्टर ए फाई के साथ अटैच कर देना है. और सबका जब आप एडिशन करते हो सो दैट यू कैन रिप्रेजेंट एज डिफरेंशियल लेंथ अलोंग एनी डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में डिफरेंशियल लेंथ का ये फॉर्मूला बन जाएगा जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है. तो यू कैन सी हियर द डिफरेंशियल लेंथ इन रेडियल डायरेक्शन, दैट इज डी आर इंटू यूनिट वेक्टर ए आर. इन थीटा डायरेक्शन आर डी थीटा, दिस इज डिफरेंशियल लेंथ इंटू यूनिट वेक्टर, so that will become differential length vector, right? Then differential length in phi direction is r sin theta. ठीक है, यहाँ पे डी फाई रह गया, here it is डी फाई, right? और तो differential length vector for a given point is dr into unit vector ar, r d theta into unit vector a theta and r sin theta d phi here. You have to write down d phi here. ठीक है, I will post the slides in the attachment section, so you can download this slide. So in that I will upload the modified slide here, right? So this is nothing but the differential length vector in spherical coordinate system. So after the differential length we will be having the differential surfaces now. So as you know, the differential surface is the multiplication of the two differential length. तो मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, डी आर देन आर डी थीटा देन आर साइन थीटा डी फाई, ऐसे पहले लिख लेना है. अभी डिफरेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू आर डायरेक्शन अगर बोलता हूं तो आर डायरेक्शन को छोड़ देना है और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है. तो ये कितना आएगा हमारे पास, आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, जो मैंने यहाँ पे लिखा है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई. दैट इज डिफरेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू रेडियल डायरेक्शन यानी आर डायरेक्शन. डिफरेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर तो थीटा डायरेक्शन अगर बोलता हूं तो इस को छोड़ देना है और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है. ठीक है, यानी आर साइन थीटा डी फाई आएगा. तो ये देखिए आर साइन थीटा डी फाई. और अगर फाई डायरेक्शन को परपेंडिकुलर अगर मैं बोलता हूं तो इसको छोड़ देना है आप लोगों को और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है. तो ये आएगा आर डी थीटा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. In one sentence, what you can remember here, the differential surface perpendicular to any direction is the multiplication of two differential lengths perpendicular to that direction.
अगर ये सेंटेंस अगर आप ध्यान में रखते हो तो आसानी से ये आपके ध्यान में रहेंगे। ये रटने की चीज नहीं है, सिर्फ डिफरेंशियल लेंथ ध्यान में रखो तो डिफरेंशियल सरफेस आपको लिखते आना चाहिए, right? And lastly, differential volume. As you know, the differential volume is the multiplication of all the three differential lengths. So therefore, हम देख लेते हैं कि ये आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाइव कैसे आएगा। तो आपके पास है डी आर, देन आर डी थीटा और आर साइन थीटा डी फाइव है हमारे पास। तो तीनों डिफरेंशियल लेंथ है, मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हो तो आर इंटू आर इज आर स्क्वायर, then we are having the sine theta, then dr d theta d phi. So dr d theta d phi. So differential length is the multiplication of all the three differential lengths. So these are some of the basic points about the spherical coordinate system. I hope you have understood this. So I will stop here, and in next lectures we will see some of the numericals based on all the concepts that we have seen in the topic about vectors. So thank you so much. Bye bye.